Hello students, chemistry is a study of chemical reactions. Thermodynamics helps us to predict whether the given reaction is feasible or not feasible. But thermodynamics doesn't tell us anything about the speed of reaction, whether the given reaction is slow reaction, fast reaction or it is extremely slow reaction. In chemical kinetics, we study about the rate of reaction, mechanism of reactions and factors influencing the rate of reaction. So today in this lecture we shall study chemical kinetics. Chemical kinetics. Chemical kinetics is that branch of chemistry which deals with different types of reaction on the basis of their speed. It deals with mechanism of reaction and also deals with the factors influencing the rate of reaction. So first term, rate of reaction. Rate of reaction, it means speed of reaction. Speed of reaction, and on the basis of speed of reaction, reactions are classified as the chemical reactions are classified as fast reactions. Some of the reactions are extremely fast. फास्ट रिएक्शन हम उन रिएक्शन को कहते हैं जिनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन के वैल्यू 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होती है. इट मीन्स कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकेंड का टाइम लगता है, दैट इज नोन एज फास्ट रिएक्शन. सम एग्जाम्पल्स ऑफ फास्ट रिएक्शन: precipitation reaction, neutralization reaction. These reactions are extremely fast reaction. Precipitation reaction आपने देखा होगा, लैब में एक्सपेरिमेंट किया है. दो सॉल्यूशन को हम ऐड करते हैं और इससे पहले कि हमें कुछ समझ में आए प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है. सो दिस इज सच अ फास्ट रिएक्शन, वी कैन नॉट मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन विथ ऑर्डिनरी टेक्निक्स. सो केमिकल काइनेटिक्स में इस तरह के एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन की स्टडी पॉसिबल नहीं होती है. इन रिएक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है केमिकल काइनेटिक्स में. On the basis of speed, second type of reactions are slow reactions. Some of the reactions are extremely slow reaction. उनमें से कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीट होने में मंथ्स का टाइम लग जाता है. कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनको कंप्लीट होने में ईयर्स का टाइम लग जाता है. सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड स्लो रिएक्शन. एक एग्जांपल देखिए, रस्ट फॉर्मेशन. रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा हुआ है, आयरन करोड होता है एंड दैट रिएक्शन इज एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन. मॉइस्चर एंड एयर के कांटेक्ट में आकर रस्ट का फॉर्मेशन होता है एंड रस्ट फॉर्मेशन होने में एक दिन या 2 दिन नहीं, 6-7 days और मिनिमम अ मंथ विल टेक प्लेस. तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें बहुत लंबा टाइम लगता है, ऐसे रिएक्शन के स्टडी लैब में फिजिबल नहीं होती है. सो केमिकल काइनेटिक्स में इस तरह के रिएक्शन की भी कोई वेटेज नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज मॉडरेट रिएक्शंस. कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके कंप्लीट होने में बहुत थोड़ा टाइम या बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता. इट मीन्स सम ऑफ द रिएक्शंस आर नॉट एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन एंड दे आर नॉट वेरी स्लो रिएक्शन. दे आर कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन.
मॉडरेट रिएक्शन इट मीन्स ऐसे रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में घंटों का टाइम लगता हो, मिनट्स का टाइम लगता हो, 1-2 दिन का टाइम लगता हो, ऐसे रिएक्शन की स्पीड की स्टडी लैब में की जा सकती है. सो इन केमिकल काइनेटिक्स we deal with this type of reactions. Some of the common example of moderate reaction, that is decomposition of nitrogen pentaoxide. Nitrogen pentaoxide का decomposition होगा and the product is nitrogen dioxide gas and oxygen gas. इस रिएक्शन की स्टडी हम लैब में कर सकते हैं बिकॉज ये फास्ट रिएक्शन भी नहीं है और ये एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन भी नहीं है. The another important example of this category is esterification reaction. Reaction of acetic acid with alcohol which forms a product that is ester and water. This is called esterification reaction. Esterification reaction का reverse reaction होता है saponification reaction, and both the reactions are taking place at room temperature and both the examples are moderate reaction. So chemical kinetics में हम इसी तरह के reaction की study करते हैं. Now when we are starting with the chemical kinetics, the first term is rate of reaction. Rate of reaction. Rate of reaction can be measured with the help of reactant or product, and it is defined as change in concentration. Change in concentration or pressure. Pressure per unit time. Per unit time. Change in concentration or pressure per unit time of reactant or product. Reactant or product is known as rate of reaction. Is known as rate of reaction. Suppose a reaction is A converted into B. A is reactant and B is product. A is gaseous and B is also gaseous product. अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हम A के कंसंट्रेशन चेंज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड B के कंसंट्रेशन चेंज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कंसंट्रेशन का मतलब होता है एक्टिव मास. सो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज चेंज के लिए डेल्टा साइन यूज करेंगे. कंसंट्रेशन के लिए एक्टिव मास का साइन यूज कर रहे हैं. कभी भी किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है तो इसको बोला जाता है एक्टिव मास. And this active mass, it means concentration of the substance in moles per liter. तो यहां ब्रैकेट सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है. वी हैव टू टेक द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन मोल्स पर लीटर. अब यहां मैंने लिखा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन टाइम पीरियड. ए की इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, आफ्टर अ गिवन टाइम पीरियड उसकी कंसंट्रेशन पता है. डिफरेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं. Similarly, rate of reaction can be measured with the help of concentration of B as well. जब हम B के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, again that is change in concentration of B per unit time. That is time interval, change in concentration of B, change in concentration of A. अब देखिए कंसंट्रेशन की हेल्प से हमें इस रिएक्शन की रेट की यूनिट डिसाइड करनी है. तो किसी भी रिएक्शन के लिए रेट की यूनिट क्या होगी? कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर एंड टाइम पीरियड इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड, इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन मिनट्स और इन आवर्स. तो रेट की यूनिट क्या होगी? मोल्स पर लीटर पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम. जब भी हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे
हमें ध्यान रखना है कंसंट्रेशन हमेशा मोल्स पर लीटर में यूज करें एंड टाइम पीरियड सेकंड में दिया है क्वेश्चन तो आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट कीजिए, मिनट्स में दिया है सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करके यूज करेंगे, इफ टाइम पीरियड आवर्स में दिया है तो हम डेल्टा टी आवर्स में लेंगे और उसके अकॉर्डिंग टाइम की यूनिट सेकंड, मिनट और आवर ली जा सकती है। सपोज reactant and products are gaseous. अब gaseous state में instead of change in concentration we can measure pressure drop or pressure difference. Initially हमने reactant लिया है, only reactant is present, so whole pressure of the system is due to number of moles of A. जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स ए के कम होते जाएंगे उसका प्रेशर भी कम होता चला जाएगा। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट टाइम। और जब हम प्रेशर के टर्म में ले रहे हैं तो रेट की यूनिट हो जाएगी द यूनिट ऑफ प्रेशर which may be atmosphere, which may be mm mercury, प्रेशर की यूनिट आप लेंगे और उसके साथ साथ पर यूनिट टाइम मेंशन करेंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। Now let us see how can we measure the rate of reaction. Suppose the reaction is conversion of A into B. अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करना है। मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाएगा एंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को हम इस टेबल में मेंशन करते चले जाएंगे। ये हमने एक टेबल बनाया, एक कॉलम लिया टाइम पीरियड, दूसरे कॉलम में लिया कंसंट्रेशन ऑफ ए मोल्स पर लीटर में। एक्सपेरिमेंट ए या बी किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज रिएक्शन इज कैरिड इन दिस फ्लास्क and initial concentration of A is 1 mole. Initial का मतलब when time period is 0. जब हम at the beginning की बात कर रहे हैं there is only one reactant and reactant की concentration है 1 mole per liter. अब 5 मिनट बाद एक फिक्स टाइम इंटरवल ले लेते हैं। 5 मिनट के बाद A की कंसंट्रेशन कितनी है ये हम इसमें मेजर करेंगे। कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए बहुत सारी मेथड होते हैं। द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन और इट कैन बी मेजर्ड बाय एनी अदर एसिड बेस रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन। सपोज 5 मिनट के बाद हमने ये देखा कि रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन है 6.6 मोल, 0.6 मोल। अब एक फिक्स टाइम इंटरवल अगेन 5 मिनट, इट मीन्स नाउ द टोटल टाइम बिकम्स 10 मिनट। टेक 10 मिनट पर हम मेजर करेंगे कंसंट्रेशन क्या है। सपोज इस समय इसकी कंसंट्रेशन दिख रही है 0.4। अगेन 5 मिनट का इंटरवल लिया, एट 15th मिनट रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑब्जर्व करते हैं, सपोज इट इज 0.3। फिर 5 मिनट, इट मीन्स आफ्टर 20th मिनट हमने रेट ऑफ रिएक्शन को देखा, कंसंट्रेशन को देखा, दैट इज सपोज 0.25। सो एक्सपेरिमेंट की हेल्प से एक गिवन टाइम इंटरवल पर, एक गिवन टाइम पीरियड पर ए की कंसंट्रेशन कितनी है उस कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। कंसंट्रेशन मेजर करने की जो कॉमन टेक्निक है, इस फ्लास्क में हमने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दिया। द इनिशियल कंसंट्रेशन इज नोन कंसंट्रेशन। नाउ आफ्टर 5 मिनट रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। ठीक 5 मिनट के बाद हम इसमें एक पिपेट डालेंगे
पिपेट से सॉल्यूशन को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद एक ट्यूब के अंदर डाला और इस ट्यूब को तुरंत फ्रीजिंग मिक्सचर में डाल दिया जाता है। फिर अगेन 5 मिनट के बाद फिर दोबारा पिपेट डालेंगे। इसमें से 5 मिलीलीटर सैंपल निकाला और इस सैंपल को दूसरे इस ट्यूब में डाला। ट्यूब को फ्रीजिंग मिक्सचर में हमने डाल दिया। फ्रीजिंग मिक्सचर में डालने का पर्पस ये होता है कि जहां तक रिएक्शन हुई है वो रिएक्शन वहीं पर सीज कर जाएगी। तो 5-5 मिनट के इंटरवल से हमने ऐसे सैंपल्स कलेक्ट कर लिए एंड सैंपल कलेक्ट करने के बाद इसका टाइट्रेशन किया जाता है। टाइट्रेशन की हेल्प से इस समय ए की कंसंट्रेशन कितनी है, इस समय कितनी कंसंट्रेशन है, इसको मेजर कर सकते हैं और मेजर करने के बाद हम ये टेबल बना लेंगे। इस टेबल की हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन। एक एक्सिस पर लिया कंसंट्रेशन, दूसरे एक्सिस पर लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मेंशन किया हुआ है। दिस इज 0, सपोज इट इज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, सो ऑन। यहां पर हमने कंसंट्रेशन लेनी है। दिस इज 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1.0। जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 1 मोल। आफ्टर 5 मिनट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.6 मोल। आफ्टर 10th मिनट द कंसंट्रेशन इज 0.5 मोल। आफ्टर 15th मिनट द कंसंट्रेशन इज 0.3 मोल। After 20th minute, the concentration is 0.25 mole. इस तरह से जो वैल्यूज हमने देखी टेबल में, उस वैल्यूज को हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे और जब इसको मिलाया जाएगा तो इस तरह का एक ग्राफ ऑब्जर्व किया जाता है। जब हम रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन को अगेंस्ट टाइम प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ हमेशा ऐसा मिलेगा। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, टाइम के साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाती है। इफ टाइम एक्सिस पर हम इसको और बढ़ा दें तो इस तरह से ग्राफ मिलता चला जाएगा। अब देखिए एक टर्म लिया जाता है रिएक्शन लाइफ टाइम। रिएक्शन लाइफ टाइम। रिएक्शन लाइफ टाइम इज द टाइम पीरियड. This is the time period in which reaction is almost 98% completed. 98% completed. इस टाइम पीरियड को बोला जाता है रिएक्शन लाइफ टाइम। ओके, रिएक्टेंट के लिए स्लोप ऐसा मिलेगा। इफ प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करना चाहे, प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन है 0 एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द टाइम पीरियड डिक्रीज होती है एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम पीरियड के साथ बढ़ती चली जाएगी। सो कंसंट्रेशन को जब टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे इस तरह का ग्राफ हमें मिल जाता है। अब इस ग्राफ में एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या दिखाई दे रहा है? द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म डिक्रीज नहीं दिखाई देगा। शुरू के कुछ टाइम पीरियड में रेट ऑफ रिएक्शन या चेंज इन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसका मैग्नीट्यूड कम होता चला जा रहा है। इट मीन्स हम ये नहीं कह सकते हैं throughout the experiment the reaction is proceeding with same speed.
इफ कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो रिएक्शन की स्पीड भी चेंज हो रही है, एंड स्पीड चेंज होने का मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि रिएक्शन की स्पीड थ्रू आउट सेम रहती है। इफ इट इज नॉट रिमेनिंग थ्रू आउट सेम, तो रिएक्शन की स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए दो अलग अलग टर्म यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अभी हमने आपको बताया थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट किसी भी रिएक्शन की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। तो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए रिएक्शन की स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज rate of reaction, and another type is instantaneous rate of reaction. Average rate of reaction किसको बोला जाता है? Average rate of reaction, it means change in concentration of reactant or product by change in time period. अब average का मतलब क्या लेना है? Change in time period, that is T2 minus T1. Initial time period, this is final time period. Initial time period पर concentration है C1, final time period पर concentration है C2. So change in concentration is C2 minus C1. Change in time period is T2 minus T1. If this difference in time period, if this delta t is very large, suppose इस delta t का magnitude बहुत बड़ा है, difference miserable difference है, तो उस समय change in concentration भी miserable आ जाएगा। और जब ये वैल्यू बड़ी होती है उसको बोला जाता है average rate of reaction. For example, हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। Suppose at this axis this is concentration और इस एक्सिस पर हमने लिया टाइम पीरियड। यहां से यहां तक का टाइम पीरियड ले लिया 20 मिनट। दिस इज द कंसंट्रेशन, ये जीरो कंसंट्रेशन है। यहां ले लेते हैं दिस इज 0.1 मोल और यहां पर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया है 1.1 मोल। सपोज अब देखिए एक्सपेरिमेंट इज स्टार्टेड विथ 1.1 मोल और 20th मिनट के बाद उसकी कंसंट्रेशन रह गई 0.1 मोल। इफ इट इज सेड दैट कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 20th मिनट, तो 20th मिनट इट मीन्स एक बहुत लंबा टाइम इंटरवल को हमने चूज किया है और इस टाइम इंटरवल में हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने फॉर्मूला लिखा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। C2 दैट इज 0.1, दिस इज 0.1, C1 1.1 अपॉन T2 माइनस T1, दैट टाइम पीरियड इज गिवन 20। अब रेट की वैल्यू क्या आ गई? 1.1 माइनस 0.1, that is 1 mole divided by 20. This is 1 by 20. 1 by 20 ये हमारे लिए रेट की वैल्यू आ रही है। क्लियर? अब देखिए इस समय रेट के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, जबकि रेट के साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिएक्शन इज ऑलवेज प्रोसीडिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इस एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए एक कन्वेंशन दिया गया। इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड फॉर रिएक्टेंट, तो यहां पर हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम पीरियड। लेकिन जब रिएक्शन प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट के लिए हमने लिखा है, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर रिएक्टेंट। सपोज रेट ऑफ रिएक्शन हमें प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में मेजर करना है, तो हम क्या यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम पीरियड।
प्रोडक्ट के लिए जब हम फॉर्मूला लिखेंगे नेगेटिव साइन नहीं यूज करेंगे, रिएक्टेंट के लिए लिखा है नेगेटिव साइन यूज करेंगे। सो नेगेटिव साइन का पर्पस यही होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहां पर हमने इंफॉर्मेशन रिएक्टेंट के टर्म में ली थी, इसलिए रेट कैलकुलेट करते समय इसकी पहले हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 इंटू 10 रेज टू पावर -1 और दिस इज 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -1 मोल्स पर लीटर पर मिनट moles per liter per minute. So in this way we can calculate rate of reaction. Whenever the time interval is very large, it is measurable, it can be measured with the help of experiment, then rate of reaction is called average rate of reaction. The another term is instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction. Rate of reaction at any instant of time. At any instant of time is called instantaneous rate of reaction. Now at any instant of time, instant of time period, उस particular time period पर हमें reaction की speed बतानी है. एक particular time period, it means the time interval becomes very very small. That time interval is very very small, and when time interval is very small, it is expressed as dt. अब देखिए हमें इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम पीरियड. दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन. अब इस पर्टिकुलर केस में हम क्या देख रहे हैं? Time interval is very very small, so change in time period, it is represented by dt. Change in concentration, this is represented by dc. Now see, if time interval is very small, then change in concentration will be also very small. And since this value is very small, it cannot be measured with the help of experiment. So instantaneous rate of reaction is calculated with the help of graph. हमें rate of reaction का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. Rate of reaction का ग्राफ हमने अभी पढ़ा. कंसंट्रेशन इस एक्सिस पर लिया है, टाइम पीरियड हमने इस एक्सिस पर लिया है. सपोज इट इज मार्क्ड एज 5, 10, 15, 20. यहां मार्क किया है 0.5, दिस इज 1.0, 1.5, 2.0. रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया. अब इस ग्राफ में पूछा जाए व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट एग्जैक्ट 5th मिनट. ठीक 5th मिनट पर एक टाइम इंटरवल नहीं बोला गया कि फर्स्ट 5 मिनट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा. व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट एग्जैक्टली 5th मिनट? दैट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इस इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए 5th मिनट पर ग्राफ में एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया एंड इस टेंजेंट की हेल्प से स्लोप कैलकुलेट करेंगे. स्लोप हमें कैलकुलेट करना है. स्लोप हो गया ये एक्सिस. सपोज इट इज O, एक पॉइंट जहां पे ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दैट इज P, और इस एक्सिस को कट कर रहा है, दैट इज Y. सो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी OP by OY.
यहां से यहां तक टाइम पीरियड के वैल्यू ले लेंगे, यहां से यहां तक चेंज इन कंसंट्रेशन के वैल्यू ले लेंगे, एंड चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम पीरियड, दैट इज नोन एज इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. So instantaneous rate of reaction is calculated with the help of graph. और ग्राफ को कैसे यूज करना है? रिएक्टेंट के लिए स्लोप कैलकुलेट करेंगे, एंड इफ एनी ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर प्रोडक्ट के लिए भी हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, और उस स्लोप की वैल्यू से पता चलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन.